जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद का खड़ न्यू लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर है 17। लेक्चर नंबर है 17। एक चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने किया था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। आज हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जाते हैं। सेकंड पार्ट, 5 tangent of x, let y is equal to 5 tangent of x has domain of tangent of x is x belongs to real number such that x is not equal to 2n plus 1 pi upon 2 where n belongs to z, then domain of 5 tangent of x is also x belongs to R. X does not equal to or not equal to this where n belongs to z. Now a range of tangent are a range of 5 of tangent is also R. मुझे सुन लो, लेट हमने सबसे पहले y को इक्वल लिया टेंजेंट के। His domain of tangent is x belongs to real number, x is not equal to 2n plus 1 pi by 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकी जगह पर सपोज कर ले 0 ले लें, पाई बाई 2 आएंगे। अब टेंजेंट पाई बाई 2 मीन साइन पाई और कोसाइन पाई बाई 2 मीन्स 90 और 0 के इक्वल तो इंफिनिटी में चला जाता है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज नॉट इक्वल टू, तमाम जितना भी वन आप लगा होगी हम वन वो हॉट में आएगा तो इस वजह से वन बनेगा 0। तो ड्यू टू दिस रीजन हम कह सकते हैं इट इज नॉट इक्वल टू, इनके डोमेन ये नहीं है, बाकी तमाम रियल नंबर इसके डोमेन है। रेंज तमाम रियल नंबर्स हैं, चाहे वो 5 से मल्टीप्लाइड भी कर लें, देन दैट हाउ कॉल्ड range of real number of the given function। 4 cosecant 3 of x, let y is equal to cosecant of 3x has domain of cosecant of x is equal to minus infinity to plus infinity and x is not equal to n phi and belongs to z। If x is equal to 3 of x, thus domain of cosecant 3 of x minus infinity to 3x infinity x is not equal to n phi 3 x बनेगा हमारे पास infinity और 3 है not equal to n phi n belongs to z, which is again equal to minus infinity to plus infinity, x is not equal to n phi upon 3, n is equal to z। Therefore real number में से x such that x equal to n pi over 3 निकालें, where n belongs to integers, that is called domain of this range of cosecant of x y cosecant 3 of x, that y is equal to cosecant 3 of x has
द डोमेन ऑफ कोसेकेंड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाइन करेगा। बट एन फाई व्हाट इज एन एक्स इज नॉट इक्वल टू एन फाई, अगर क्योंकि एन फाई के इक्वल होगा वो इन्फिनिटी में चला जाता है तो फिर उसकी न डोमेन एग्जिस्ट करेगा, अमन उसकी डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक्स की जगह पर 3x लेते हैं, हमने एक्स की जगह पर 3x तमाम सीरीज को 3 पे डिवाइड किया, दोबारा भैया 3 वहां पे जाकर के तो डिवाइड होगा। इट मींस x इज नॉट इक्वल टू n पाई ओवर 3, यही लिखा हुआ है कि रियल नंबर में से सच दैट x इज इक्वल टू n पाई ओवर 3 को निकालें, बाकी ऑल आर कॉल्ड डोमेन ऑफ कोसेकेंड 3 ऑफ x for range -1 to 1/3 that must be lying real number में से इनको निकालो तो that is called range of this। ये कोसेकेंड 3 of x है, ये कोसेकेंड 3 of x है। फिफ्थ पार्ट 3 को टेंजेंट to x, let y is equal to 3 cotangent to x, domain of cotangent of x is equal to minus infinity to infinity, and x is not equal to n phi where n belongs to integers. Similarly, thus domain of 3 cotangent 2 of x is equal to cotangent 2 of x is equal to minus infinity to x infinity। यू बनेगा हमारे पास n does not belongs to n now 2 of x not equal to n phi minus infinity over 2 infinity over 2, x is not equal to n phi over 2 minus infinity to plus infinity, x is not equal to n phi over 2। Thus, domain of 3 cotangent 2 of x is equal हर रियल नंबर में से x such that x is equal to n phi over 2, n is not equal to z। Now range of cotangent is equal minus infinity to I to infinity if x is equal to 2x। Range of cotangent to x is equal minus infinity to I to infinity। Thus range of 3 cotangent to x is equal to minus infinity to y to plus infinity। इसके बाद 6 part sin of phi of x, let y is equal to sin phi of x, domain of sin of x is equal minus infinity to plus infinity if x is equal to phi of x, thus then domain of sin phi of x
is equal to minus infinity 2x to infinity over 5। infinity समंदर है, समंदर से अमूमन जितना भी कर लो समंदरी समंदर रहेगा। infinity बहुत बड़ी अमाउंट है, जिस पे डिवाइड जिससे मल्टीप्लाइड वो हमारे पास infinity ही आ जाता है। now a range of sine of x -1 to 1. Similarly, if x is equal to phi of x, thus the range of sin phi of x is equal to -1 to 1। फिफ्थ पार्ट 3 कोटेंजेंट 2 of x। सबसे पहले हमने इनको लेट किए लेट y is equal to 3 कोटेंजेंट 2 of x। डोमेन अब कोटेंजेंट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक है। x is not equal to n pi y because it convert into undefined form। तो 2x का x की जगह पर 2x आएगा, हाफ सीरीज को 2 पे डिवाइड किए और इन्फिनिटी को 2 पे डिवाइड कर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को 2 पे डिवाइड कर इन्फिनिटी, ये 2 वहां पे जाकर के डिवाइड हो तो रियल नंबर सिस्टम में इनको निकाले। बाकी ऑल आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन बट रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। 2 cos x का भी अगर x की जगह पर 2 y की जगह पर 2y ले लें, सॉरी फॉर दिस, x की जगह पर अगर हम 2x ले लें तो तब ये यहाँ पे 2 आएगा, वो भी वही सेम रहेगा। तो मन इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर अगेन y को हमने ली है साइन ऑफ फाई ऑफ x, डोमेन निकाला है 2x पाई ऑफ x, सॉरी नॉट 2x, इट इज फाई। तमाम को पाई पे डिवाइड, ये डोमेन आया हमारे पास, रेंज -1 to 1 होता है, दैट इज कॉल्ड रेंज एंड डोमेन ऑफ द गिवन पीरियोडिक फंक्शन। 8 पार्ट secant 2 pi of x plus 5, let y is equal to secant 2 pi of x plus 5। domain of secant minus infinity to plus infinity where x is not equal to 2n plus 1 phi of 2 where n is equal to 0। वही बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ये कोसाइन का अपोजिट है ड्यू टू दिस रीजन। डोमेन ऑफ 2 phi x plus 5 minus infinity x to x की जगह पर वैल्यू है 2 phi x plus 5 infinity 2 phi x plus 5 not equal to 2n plus 1 phi of 2। 5 को दोनों साइड माइनस कर लेते तो इधर 2 पाई ऑफ x बच जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 5 आएगा। 4 पाई x, 5 को दोनों साइड समझे माइनस कर रहे हैं, समंदर में से अगर 5 गिलास पानी निकालें, समंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाले तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस इन्फिनिटी और 2 पाई x, इन्फिनिटी ऑफ 2 पाई x इज नॉट इक्वल टू 2n plus 1 divided by 4 minus 5 divided by 2 pi।
रियल नंबर में से x such that x equal to, that is called domain and range of the function. क्या गिवन है? सेकेंड 2 pi x plus 5। हमने लेट y किए। सबसे पहले हमारे पास होगा डोमेन ऑफ दिस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 2 pi n plus pi upon 2। वाई? बिकॉज वी नो ये हमारे पास चूंकि वन अपॉन कोसाइन का अपोजिट है, तो अगर पाई बाई 2 में बन गया आर्ट में तो तमाम और क्या होगा? इन्फिनिटी की इक्वल अनडिफाइंड होगा। पाइप अब एक चीज पाइप एक्स ने पाइप दोनों साइड आर साइड इज माइनस की है, जाहिर सी बात इन्फिनिटी माइनस 5 दैट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 5 दैट इज इन्फिनिट। फिर यहाँ पे डिवाइड सब पे डिवाइड किया, इसी तरह ये को भी किए, पाइप यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे भी माइनस किए, ये यहाँ पे आकर के दोनों के अपान में डिवाइड होगा। और सिमिलरली ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है। अब मीन्स इन्फिनिटी में से अगर इनको निकाला जाएगा then that all be the domain of secant 2 pi x plus 5। सिमिलरली रेंज यहाँ तक है, रियल नंबर में से 1 से ले -1 से लेकर के 1 तक निकाले, that all are called range of the given function। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, find the value of the following function। पहला पार्ट हमें गिवन है cosine of minus pi upon 6। This is equal to cosine of pi upon 6 because cosine is even function। This is equal to cosine 180 divided by 6 because pi is equal to 180। 6 1s are 6 3s are cosine of 30, cosine 30 radical of 3 divided by 2। Second part, secant minus pi upon 4। We know that it is equal to cosine pi upon 4, which is equal to 1 upon cosine 4 pi because cosine is even function। So this is equal to 1 divided by cosine 180 और 4 कैंसल करके ये बनेगा cosine 45, बट cosine 45 1 रेडिकल ऑफ 2, ये ऊपर जाकर के रेडिकल ऑफ 2 और 1 विच इज इक्वल टू 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन cosine माइनस पाई अपॉन 6। हमने नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कोसाइन माइनस थीटा कोसाइन ऑफ थीटा की इक्वल था। तो ये हमारे पास है कोसाइन ऑफ पाई बाई 6 और कोसाइन हमें पता है इवन फंक्शन है, ड्यू टू दिस रीजन ये पॉजिटिव की इक्वल होता है। पाई मीन्स 180 को डिवाइड किया 30 पे, बट 30 की वैल्यू टेबल में है रेडिकल ऑफ 3 ओवर 2। सिमिलरली नेक्स्ट लिया हमने कौन सा लिया, सेकेंड माइनस पाई अपॉन 4। सेकेंड में बताया 1 अपॉन कोसाइन, फिर कोसाइन ही 1 है तो पॉजिटिव में वैल्यू लगा, बट कोसाइन 45 मीन्स 1 रेडिकल ऑफ 2 ऊपर जाकर के 2 अपॉन 1 which is equal to radical of 2। This is the value of cosine
सॉरी सेकेंड माइनस 5/4। ये था हमारे लेक्चर नंबर 70। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम न्यू लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे। फिलहाल मैं इजाज़त लूँगा। 17 लेक्चर हमारे कंप्लीट हुआ और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट हुए हैं। ज़िंदगी रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे जब हम लेक्चर नंबर 71 शुरू करें। थैंक यू।